Good afternoon, everybody. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, everybody. God bless you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. I'm good. Vrinda, thank you. Good afternoon, good afternoon. Pranam, Abha. God bless you, Ishika. I'm good, Anchal. Thank you. God bless you, Samiksha. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, everybody. Good afternoon, Sat Sri Akal. Good afternoon, Namaskar, Sudha. Good afternoon. I'm good, Muskan. Thank you. God bless you, Manpreet. गुड आफ्टरनून. विदिशा मुझे एक मैसेज कर दो अनिल खन्ना को, मैं अपने आप ज्वाइन कर दूं. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. गुड आफ्टरनून. माय ब्लेसिंग्स ऑलवेज देयर. एडवोकेट, व्हाट्स योर नेम? गुड आफ्टरनून. अंशु, कॉन्ट्रैक्ट वन इज कवर्ड इन द सेकंड मॉड्यूल, इन द फर्स्ट, जो भी जुलाई वाला मॉड्यूल. तो आपको कॉन्ट्रैक्ट वन जुलाई मॉड्यूल में आएगा. ओके लक्ष्मी. ओह, आप तो पुराने स्टूडेंट हैं लक्ष्मी. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. गॉड ब्लेस यू गौरव. Good afternoon. I'll check up Prerna. Most probably they will be. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Gurvinder. God bless you. Hammagani, Aditi. Okay, welcome. Punjab, no idea. Hemant. Surmises, conjectures are here. Oh, thank you, Rahul. No, 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 Anshu. ये बिल्कुल अलग है. Don't bother. यहीं से indemnity से शुरू करो. Oh, Nikhil, good afternoon. You're from Vizag. Welcome. Dharni, for online students, we have the Telegram group. So don't worry. God bless you. God. Now, four subjects I've started. So right now we have on limitation. Okay, Shalu from Jodhpur. Namaskar. Good afternoon. Good afternoon. How are you, Gaurav? God bless you. Good afternoon. Good afternoon, everybody. Chali, I guess I'll have to start. We don't have the luxury of addressing everyone. Good afternoon. God bless you, Shreya. चलिए. हाँ, यूपी जुडिशरी, कोई भी जुडिशरी हो, नए लॉज पढ़ो, उनको कंपैरेटिवली पढ़ो. यस, अभी लिमिटेशन है, अगला हिंदू लॉ है. ओके, यू आर फ्रॉम पटना, आकांक्षा. ओके, वेलकम ऑल माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. नाउ यू हैव. ओके, मुस्कान, आई एम नॉट सीन द, आई चेक अप. ओके, बानू, वेलकम. चलिए, लेट्स स्टार्ट नाउ बिकॉज एवरी डे इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी डोंट आस्क कि वैकेंसी कब आएंगी, पहले ये पूछो आप तैयार हो. आर यू रेडी? वैकेंसी कल आ जाए तो क्या आप तैयार हो? ओके, श्रुति, वेस्ट बंगाल. यस, भरत. ओके, भानु, यू आर फ्रॉम पंजाब, खरड़. वेलकम.
Aradhya, just send a message to Anil Khanna. Okay, Rahul, you are from Delhi. You're from Prayagraj, Ujjwal. Okay, from Bihar, Mansi. चलिए, I hope कल वाला आपने सबने लेक्चर ले लिया होगा. Don't miss the beginning lectures. Okay, Rajvinder, Hemant from Punjab. Okay, so I have entire India here. चलिए, welcome everybody. You're from Madhya Pradesh, Pawar. Okay, yes, yes, Muskan. That's the right way of learning. You're from Kota, Barkha. Okay, Gorakhpur, Priyanchi. Lavina, you're from MP. Monica, you're from Haryana. Manjeet, Punjab. Tamanna, Haryana. Okay, fine. Chaliye, we don't have the luxury of the time. Let's start our lecture. Welcome all of you from all over India. बस मेहनत करो and don't miss any lectures. Okay, Garima, welcome. Okay, I hope all the students are back. Chaliye, let's start another law today, the law of limitation. Again, limitation is a very, very important topic, subject from examination point of view. Expect a lot of questions in limitation. Lot of questions are already coming in the prelims. एक prelims में तो मैंने काउंट किए थे 16 क्वेश्चंस लिमिटेशन से थे. 30 सेक्शन है और 16 क्वेश्चंस. सो कई बार ऐसा हो जाता है. प्लस मेंस एंड प्लस इंटरव्यू. बिकॉज लिमिटेशन है छोटा सा एक्ट, और जितने छोटे होते हैं उतने जमीन के अंदर होते हैं, उतने ही टेक्निकल हो जाते हैं. So we have to be, and people are very scared of limitation also. That is why I start always with the difficult topics in the beginning. लिमिटेशन के ऊपर साथ साथ मैं क्वेश्चंस आपको फ्रेम करता जाऊंगा जो एग्जाम्स में आए हुए हैं या जो एक्सपेक्टेड है. प्रीलिम्स का, मेंस का और इंटरव्यू के तीनों मैं आपको बताता हूं. कल भी आपने जिन्होंने अटेंड किया था, यू मस्ट हैव सीन. कल ऑफ कोर्स दे वर वेरी वेरी इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स, बट एज वी गो डीप I'll be telling you these are the questions from prelims, mains, and interview point of view. Accordingly, frame your notes. And as I have suggested, that you can have 3 registers: one for interview, one for mains, and one for prelims. Limitation के questions more essay like होते हैं या short notes होते हैं, या कई बार जैसे दिल्ली में propositions बन के आ जाते हैं. They will give certain propositions. We'll cover all, don't worry. So let's start with the Limitation Act. You know, wherever there are rights, there are there is always a remedy. Ubi is qui remedium. We all know that. Naturally, if there is an infringement which takes place, we have to go to the court, because the forum which gives us relief is always the court. So naturally, when we go to a court, we are going with an expectation of a relief. And that is why we are supposed to go to the court as early as possible. One basic golden principle of jurisprudence is law does not favor indolence. जो लोग सोते रहते हैं उनको लॉ का बेनिफिट नहीं मिलता. Naturally, the question arises कि कितने टाइम में जाएं. First question arises, can I go at any point of time? If no, what should be the point of time? And if yes, is it a uniform time for everything? इसके लिए हमें इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा. When I go to the history, ये नहीं है कि ये जो हम लॉ ऑफ लिमिटेशन अभी पढ़ रहे हैं, जो इंडिया में वापस 1963 में ठीक तरह दोबारा लिखा गया.
क्वेश्चन अराइजेस, क्या लिमिटेशन लॉ जो है वो रीसेंट ओरिजिन का है? द आंसर इज नो। लिमिटेशन बेसिकली एक स्पीशी है। जो मेजर लॉ है वो है लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये लॉ जो है ये एंशंट इंडिया का लॉ है। प्रिस्क्रिप्शन का लॉ, जैसा कि मैंने बोला, इज एन एंशंट लॉ। लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या था? That if a certain period of time is over and you have not claimed your right, तो आपका वो राइट गया, यानी आपका राइट ही ले जाएंगे हम। अगर मैंने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है, कब्जा नहीं, मैं वर्ड यूज करूंगा, मैं आपकी प्रॉपर्टी के पोजेशन में हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट एंशिएंट लॉ, आई एम टॉकिंग अबाउट स्मृतिस। उसके अंदर अगर मैं आपकी प्रॉपर्टी के पोजेशन में हूं, और ये पोजेशन ना मैंने जबरदस्ती लिया था, ना चोरी छिपे लिया था, और ये आपने कोई कॉन्ट्रैक्चुअल या अपनी मर्जी से नहीं दिया था, देन आफ्टर 20 years वो जमीन मेरी हो जाएगी। सो बेसिकली प्लीज रिमेंबर, जो अर्लीस्ट लॉ था क्या था, कि अगर आपने अपना राइट ना लिया 20 साल के लिए, एंड प्लीज रिमेंबर उस टाइम राइट सिर्फ आर्यंस कौन थे? एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट का बेस क्या होता है? जमीन। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाज द बेसिस। तो हमारा जो अर्लीस्ट लॉ है, जो लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होता है, उसमें योर राइट वुड गो फॉर एवर। इसीलिए हम कहेंगे कि दो तरह के राइट्स थे, दो एंगल से देख सकते हैं। मेरा पोजेशन था 20 साल, आप चुप रहे, मुझे हटाने की कोशिश भी नहीं की, मेरा राइट एक्वायर हो गया, जिसको हम कहते हैं एक्विजिटिव प्रिस्क्रिप्शन। और अगर दूसरे के एंगल से देखो, उसका खत्म हो गया, उसकी तरफ से एक्सटिंक्टिव प्रिस्क्रिप्शन। तो कायदे से जो हमारा लॉ था वो तो पूरा राइट ही, आपकी जमीन ही ले जाता था। कल को आप उस टाइम पे राजा होते थे या जो भी हेडमैन होते थे, आप रोते रोते जाओगे, जी इसने तो कहा मैं मालिक बन गया, तो वो कहेगा कुछ नहीं, आई एम सो सॉरी, 20 साल हो गए। क्यों? क्योंकि ये एक स्मृतिकर लॉ था। वहां से कहानी शुरू होती है। तो ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे ब्रिटिश आए और वो एक जोरदार लॉ ले आए लिमिटेशन का, नहीं, हमारे यहां था। बट देन व्हेन द ब्रिटिश केम, ब्रिटिश कौन थे? ब्रिटिश वर द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ट्रेडिंग कंपनी। उसका वाह किस चीजों से पड़ता था? कॉन्ट्रैक्ट्स या रोजमर्रा जिंदगी की चीजों से, बिजनेस से। अब हजार चीजें होती हैं बिजनेस में। अब नेचुरली, अब सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो रहा है, तो आप सोचो मैं 20 साल वेट करूंगा, अगर हम पुराना लो। इसीलिए जरूरी हो गया, क्योंकि गैमुट बहुत बढ़ गया बिजनेस का, हजार चीजें आ गई, उन सब का एक बाटा रेट नहीं हो सकता था। इसीलिए सोचा गया कि हर चीज का पहला पॉइंट तो 20 साल तो नहीं हो सकता, हमें हर चीज को अलग लेके, हर चीज का अलग टाइम पीरियड रखना है जब आप कोर्ट में जा सकते हो। पहले बात होती थी सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, राइट्स की। अब हम राइट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो रिलीफ की बात कर रहे हैं। अगर आपने मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो अब कौन सा राइट? मैं तो कहूंगा मेरा कॉन्ट्रैक्ट करो पूरा। सो दैट इज वाई जो हमारे बाद के लॉ आए, जैसे कि स्पेसिफिक रिलीफ आया, वो एक स्पेसिफिक रिलीफ मांगता है कि जी इसको बोलो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे। ये सर आप मेरा ये राइट डिक्लेयर कर दो, डिक्लेरेटरी राइट।
तो बेसिकली अब कहानी खत्म हो गई। जो जमीन थी वो तो है ही, ये नहीं है कि वो खत्म हो गया, वो तो है ही, पर नया एक चीज आ गई, क्योंकि बिजनेस था, कॉमर्स था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसीलिए जरूरी हो गया कि हर चीज के रिलीफ के लिए अब टाइम पीरियड दिया जाए कि इतने दिनों में आपने कोर्ट में जाना है। अगर आप इतने दिनों में ना गए तो फिर रिलीफ नहीं मिलेगा, राइट खत्म नहीं होगा। सो प्लीज रिमेंबर, मेरा रिलीफ नहीं मिलेगा, राइट तो रहेगा। सो ये चीज खास ख्याल रखना। सो बेसिकली दोनों में फर्क क्या हो गया? प्रिस्क्रिप्शन में रिलीफ भी गया, राइट भी गया। लिमिटेशन में रिलीफ गया, राइट तो वही है। इसको हम आगे देखेंगे जाके। सो इसीलिए प्लीज रिमेंबर, लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या है? एक स्पीशी है प्रिस्क्रिप्शन की, जहां पे हम अब आपके राइट्स को नहीं छेड़ रहे, बट हम आपके रिलीफ का टाइम पीरियड दे रहे हैं। तो बेसिकली लिमिटेशन लॉ किस पे लगेगा? ज्यादातर, अगर 99.99% किस पे लगेगा? जिस जो कोर्ट में जाना चाहता है रिलीफ के लिए, यानी कि प्लेंटिफ के लिए। सो प्लेंटिफ पे लगेगा। सो प्लेंटिफ पे लगेगा अगर वो कोई राइट रिलीफ चाहता है, कोई राइट उसका इन्फ्रिंज। सो कब होगा? तो मेरा लिमिटेशन पीरियड कहां से शुरू होगा? जहां से मेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ था। आज आपने मेरा राइट इन्फ्रिंज कर दिया, मेरा राइट टू रिलीफ आ गया। जहां से मेरा राइट टू रिलीफ हो गया, वहां से मेरा मीटर चल पड़ा। वो मीटर लिमिटेशन लॉ है। सो लिमिटेशन लॉ बेसिकली हमारा मीटर चल पड़ता है। सो पहला क्वेश्चन उठता है, लिमिटेशन एक्ट शुरू कहां से होता है? लिमिटेशन एक्ट शुरू होता है जब मेरा राइट इन्फ्रिंज होता है। तो नेचुरली राइट किसका इन्फ्रिंज हो रहा है? डिफेंडेंट का थोड़ा ना हो रहा है, प्लेंटिफ का हो रहा है। समझ आ गया? ये बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक चीजें समझ नहीं आती तो बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। नाउ वंस वी आर क्लियर ऑन दीज टू वर्ड्स, चलिए अब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं, बिकॉज द क्वेश्चंस कम। व्हाट इज द लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन? हाउ इज प्रिस्क्रिप्शन reflected in the Limitation Act 1963? So quickly, because these are all recordings are available to you, I will not be slow. I'll normally speak fast. तो वो आप copy आप ले सकते हो. But I've tried to give you almost a quick dictation के prescription क्या है, क्योंकि ये सारी questions आपके mains के questions हैं. So we start like this, that prescription basically means an acquisition of a right by reason of lapse of time. So acquisition of a right by reason of a lapse of time. India being an agricultural economy, so mostly the rights were on immovable property. There was no commerce, so to say, at that time, at least not tangible commerce enough. That is why in our smritis, the time period for acquisition of this title was given as 20 years. So law of prescription, please remember, prescribes the time at the expiration of which a substantive right may be acquired. उसकी जमीन का टाइटल आपको मिल जाएगा, सब्सटैंटिव राइट एक्विजिशन है ये। तो इसलिए याद रखना, प्रिस्क्रिप्टिव लॉ हमेशा सब्सटैंटिव होता है, लिमिटेशन का लॉ प्रोसीजरल होता है। तो ये खास ख्याल, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आया हुआ है। प्रिस्क्रिप्शन इज अ सब्सटैंटिव लॉ, whereas limitation is a procedural law. Prescription has two dimensions. One from the point of view of the person who acquires it,
and the other from the point of view from the person who loses it. The extinguishment or acquisition of a right is permanent. In other words, the right is gone or acquired forever. That is why it is a substantive part of law. Acquisition can be of two things. Prescription can be of two things. पहला, easement. दूसरा, right to immovable property. सो दो तरह की प्रिस्क्रिप्शंस हैं, एक राइट की और एक प्रॉपर्टी की. ईजमेंट क्या होता है? ईजमेंट को हम अभी दोबारा भी देखेंगे. सेक्शन 2F ऑफ लिमिटेशन लॉ, ऑल्सो ईजमेंट एक्ट है हमारा 1882 का, 1882 का. वो डिफाइन करता है ईजमेंट. ईजमेंट को अगर हम बिल्कुल सिंपल वर्ड में समझें, इट इज अ बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी. किसी जमीन का बेनिफिशियल एंजॉयमेंट. जब मैं कहता हूं बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, इसका मतलब है जमीन मेरी नहीं है, उसके ऊपर जो राइट एंजॉय कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं. सो बेसिकली लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन ईजमेंट. मेरा खेत जो है आपके खेत के पीछे है. मेरा और कोई रास्ता नहीं है कि सिवाय आपके खेत से जाने का. मैं आपके खेत में से 3 फुट का जगह लेके मैं उसमें से रोज जाता हूं. ये मेरा राइट ऑफ ईजमेंट है. राइट ऑफ ईजमेंट बहुत तरह से दिया जा सकता है. इंप्लाइड हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है, बाय कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, हजार तरीके से हो सकता है. ये तो मैंने बताया राइट ऑफ वे. जो मेरी तारें मेरे घर की बिजली की आपके खेत के ऊपर से आ रही हैं, वो भी आपका एरिया. सो बेसिकली प्लीज रिमेंबर, लाइट, एयर, वायर्स, वे, ये सारे ईजमेंट में आते हैं. अब क्वेश्चन ही उठता है कि अब इसका प्रिस्क्रिप्शन से क्या लेना देना. जब हम when we come to section 25 of the limitation act, वो कहता है अगर आपका ईजमेंट का राइट आपने 20 साल अनइंटरप्टेड लिया है तो वो राइट आपका परमानेंट राइट हो गया, यानी प्रिस्क्रिप्शन हो गया. सो अगर मैंने कोई भी ईजमेंट, मैं आपके खेत में से 20 साल से जा रहा हूं, अब आप मुझे मना नहीं, चलो मेरा आपके साथ अच्छा रिश्ता था, आपने मना ना किया, आपकी डेथ हो गई, आपका लड़का अलग तरह का, वो कहता है खबरदार मेरे खेत में से गए, मेरा प्रिस्क्रिप्टिव राइट है, अब आप मुझे कुछ नहीं रोक सकते, मेरा राइट बन चुका है. सो इसको कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव राइट ऑफ ईजमेंट. तो जहां मुझे राइट परमानेंट हो जाता है, जैसे कि 20 इयर्स मैंने आपको बताया इन दिस थिंग. अगर सरकारी जमीन हो तो फिर 30 साल है, क्योंकि सरकारी नेचुरली सरकारी है. तो आप मेरे प्राइवेट लैंड से गुजर रहे हैं तो 20 साल में होता है, सरकार को थोड़ा और टाइम दे देते हैं तो सरकार में 30 साल होता है. दूसरा होता है प्रॉपर्टी के ऊपर राइट. सेक्शन 27 लिमिटेशन एक्ट हमें कहता है कि अगर 12 साल से 12 इयर्स किसी ने एक कब्जा रखा है तो वो हमेशा के लिए मेरा प्रॉपर्टी हो गई. अब यहां पे प्लीज याद रखना,
मैंने अभी कहा था प्रिस्क्रिप्शन टेक्स अवे द राइट ऑफ द राइट्स, नॉट द रिलीफ, नॉट द राइट्स। हम पहले देखते थे ये, पहले जमाने में तो कोर्ट ही नहीं थे। तो पहले जमाने में स्मृतिज के टाइम पे कौन से कोर्ट, जमीन की बात होती थी कि ये जमीन तेरी होगी। अब तो कोर्ट्स हैं, कॉमर्स तो कोर्ट में जाएगा। इसीलिए प्लीज रिमेंबर, अब प्रिस्क्रिप्शन की दो चीजें बन गई। वो एज पर द मॉडर्न लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, एक वो जहां राइट भी गया और रिलीफ भी गया, और दूसरा वहां जहां रिलीफ भी गया और राइट भी गया। सो दो दो कॉम्बिनेशन हो गए ना प्रिस्क्रिप्शन के। सो पहले तो क्या था, हम एंशिएंट टाइम्स में जाएं तो रिलीफ नाम की तो चीज ही नहीं थी। 20 साल हो गए, अब मेरी जमीन होगी, बात खत्म हो गई। पर अब कोर्ट्स आ चुकी हैं, रिलीफ है। तो अब रिलीफ की जब हम बात करते हैं, तो अब भी क्या वही प्रिस्क्रिप्शन का लॉ है? नेचुरली चेंज होगा। तो प्रिस्क्रिप्शन का लॉ जो नया है, उसके अंदर क्या है, दो तरह हो गए। एक में राइट गया पर रिलीफ नहीं गया, यानी कि मैं राइट तो चला गया, पर मैं कोर्ट में जाके कह सकता हूं कि सर ये राइट इसने बदमाशी करके लिया था। सो जहां पे मैं आपके राइट को चैलेंज कर सकता हूं, एक। दूसरा, वो प्रिस्क्रिप्शन जहां रिलीफ भी गया, राइट भी गया, मेरा जमीन भी गई, और अब मैं कोर्ट में भी नहीं जा सकता। जो अब हम लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहे हैं, वो दूसरे वाले प्रिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं। सो प्लीज रिमेंबर, हमारे पास दो ऐसे सेक्शन हैं जहां पे रिलीफ भी गया और राइट भी गया। पहला ईजमेंट का 25, और दूसरा प्रॉपर्टी के ऊपर राइट, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर राइट 27। इज एवरीबडी क्लियर ऑन दिस प्लीज? किसी को कोई शक इसके बारे में? सो आई रिपीट क्विकली, शुरुआत हुई थी हमारी लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन से। प्रिस्क्रिप्शन क्या कहता है कि अगर आप 20 साल सोते रहे तो फिर आपका राइट गया। पर जैसे जैसे हम आगे गए, राइट्स आ गई, ईजमेंट राइट्स आ गए वगैरह, तो अब थोड़ा सा एड ऑन हुआ कि प्रिस्क्रिप्शन हम दो एंगल से देख सकते हैं। एक, जहां राइट तो दोनों में ही जाए, प्रिस्क्रिप्शन का मतलब ही है कि राइट गया, पर क्या रिलीफ भी गया? तो कुछ जगह में रिलीफ भी गया और कुछ जगह रिलीफ नहीं गया, अभी भी मैं कोर्ट में जा सकता हूं। सो जहां पे रिलीफ भी गया और राइट भी गया, वो लिमिटेशन एक्ट उसी को कवर करता है। अब कौन सी चीजों को कवर करता है प्रिस्क्रिप्शन में? राइट्स एंड जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का कब्जा है। सो राइट्स कौन से? ईजमेंट राइट्स। कब्जा कौन सा? जो मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कब्जा है। वहां 20 साल या 30 साल अगर गवर्नमेंट है, और यहां पे 12 साल। इज एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस प्लीज? क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन की, यानी कि मेरा कब्जा है, तो मेरा कब्जा जो है, मैं गुंडे लेके आ गया, आप वीक है, मैं बाहुबली हूं, और मैं आ गया अपने गुंडे लेके और मैंने कब्जा कर लिया, जब भी आप आए गोलियां ऊपर चला दी, आप भाग गए। ऐसे तो 20 साल के 40 साल नहीं मैं आ सकता। और वो कहता है तेरी हिम्मत है तो कोर्ट में जा, कोर्ट से बाहर तेरी लाशें पड़ी होंगी। हमें डर के मारे जाता नहीं कोर्ट में। तो क्या ये कब्जा, इस कब्जे की हम बात कर रहे हैं? नहीं। अगर कोई भी कब्जा, अगर हमें प्रिस्क्रिप्शन में जाना है, तो याद रखना तीन इंपॉर्टेंट या रादर चार इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहला, these four things are, always remember, for a possession to be a valid possession under the limitation law, four basic ingredients are there. वो फोर बेसिक इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं? पहला, नेक वी, NEC, सेकेंड वर्ड VI, नेक वी। दूसरा, नेक, NEC, क्लैम, CLAM। और तीसरा, नेक प्रिकैरियो, NEC, PRECARIO, नेक प्रिकैरियो। इनका मतलब क्या है? चौथा बताऊंगा।
तो तीन ये क्योंकि लैटिन टर्म्स है, पहले इनको डिस्कस करते हैं, चौथा आएंगे। नेक्वी, नेक्वी, NECVI, सेकेंड वर्ड। सेकेंड, नेक क्लैम। थर्ड, नेक प्रिकैरियो। इन तीनों वर्ड्स को, आई एम सॉरी बट रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार आता है। When is a possession deemed to be a valid possession, so as to give me the benefit of sections 25 and 27? तो पहला, नेक वी का मतलब है विदाउट वायलेंस। वी, वायलेंस। तो अगर मैंने गुंडागर्दी करके लिया है तो फिर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर प्रिस्क्रिप्शन का लॉ अप्लाई नहीं होगा। सो फर्स्ट, नेक वी। दूसरा, नेक क्लैम मीन्स विदाउट स्टेल्थ, चोरी छुपे नहीं लिया, ओपनली लिया था। सो नेक क्लैम विदाउट स्टेल्थ, यानी कि चोरी छुपे नहीं लिया। थर्ड, नेक प्रिकैरियो, विदाउट परमिशन, क्योंकि अगर आपने मेरी परमिशन लेके किया है तो फिर मैं किस बात के लिए रो रहा हूं, फिर तो बात ही खत्म हो गई। सो याद रखना, कोई भी अगर मुझे 25 या 27 में जाना है तो पहले तीन क्वेश्चंस, क्या विदाउट विदाउट वायलेंस था, क्या चोरी छुपे तो नहीं था, और क्या अलाउ तो नहीं किया था। और अब चौथा क्वेश्चन, ये मेरा 20 साल या 12 साल क्या अनइंटरप्टेड था, कि बीच में 5 साल मैंने ले लिया, फिर 2 साल आप आ गए, फिर 5 साल में आ गया, क्या ये अनइंटरप्टेड था। चार बेसिक चीजें हैं, तब जाके मुझे मेरा दरवाजा खुलता है सेक्शन 25 का और सेक्शन 27 का। I hope everybody is now clear about the law of prescription. What is prescription and prescription का law कब मिलता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम बात कर रहे हैं लिमिटेशन की, इस एक्ट का नाम है लिमिटेशन एक्ट, तो क्या इस एक्ट में कहीं प्रिस्क्रिप्शन का लॉ है? इसीलिए ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। प्रिस्क्रिप्शन इज एन एंशिएंट फिनोमिनन which is reflected in limitation act also. Elucidate. जब हम आते हैं लिमिटेशन पे, as trade and commerce went up with the advent of time and with the development of the society, and especially with the advent of the East India Company, commerce became an integral part of India. And hence, since many issues would arise, many types of infringements of rights took place, it became necessary to lay down a specific time period of limitation for each relief to be claimed. इसीलिए 1793 से ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेशंस पास करने शुरू किए, फिक्सिंग द लिमिटेशन, कि इतने इतने साल में, इतने दिन में, इतने महीनों में आप अपनी लीगल प्रोसीडिंग शुरू करोगे, नहीं तो कोर्ट के दरवाजे बंद हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लिमिटेशन लॉ पर से अंग्रेजों की वजह से आया, क्योंकि उससे पहले कोई लिमिटेशन लॉ नहीं था, उससे पहले था सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन का लॉ। तो 1793 में इन्होंने रेगुलेशंस शुरू कर दी थी, और इन सब जगह कॉमन लॉ यानी कि इंग्लिश लॉ वाज बीइंग फॉलोड। 1859 में पहली कोशिश हुई कि एक यूनिफॉर्म लॉ ऑफ लिमिटेशन डाला जाए, तो एक 1862 में ये इनटू इफेक्ट आया, और अब ये पहला यूनिफॉर्म लॉ ऑफ लिमिटेशन बना। पर बड़ा हैपहैजर्ड था, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने टाइप के राइट्स होते हैं। सिविल लॉ का तो गैमोट ही इतना बड़ा है, हर चीज को लिखना, और वो भी एक पूरे प्रॉपर तरीके से लिखना बहुत ही मुश्किल काम है। लिमिटेशन एक्ट चाहे है इतना सा,
पर मैंने बोला ना, जितना बाहर दिखता है उससे 100 गुना अंदर जमीन के अंदर है, इतना प्रॉब्लमेटिक है। इसीलिए फिर इसको दोबारा चेंज करना पड़ा, क्योंकि लगा कि यार इसमें बहुत बड़ी खिचपिच है। तो फिर दूसरा आया हमारा 1871 का लॉ। 1862 के बाद 1871 में दोबारा इसको रिप्लेस किया गया। फिर दिखा कि कमियां है, फिर 5-6 साल बाद फिर चेंज किया, फिर 1877 का लॉ आया, और फाइनली फिर आया ये 1908 का लॉ। 1908 का लॉ जो पढ़ा, जब हम आजाद हो गए, उसके बाद हमने रियलाइज किया कि इसमें बहुत सारा बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि ये ब्रिटिश टाइम्स, ब्रिटिश लॉज के मुताबिक लिखा गया था और बहुत ही कंफ्यूजिंग है। टाइम पीरियड्स वाहियात है, कोई 3 साल हो जाता है, कोई 5 साल हो जाता है, कोई सेंस नहीं है। एज ए रिजल्ट, द थर्ड कमीशन, लॉ कमीशन रिपोर्ट के बेस पे हमारा 1963 का ये एक्ट बना जो आज हम पढ़ रहे हैं। इसका मेन रैशनल क्या था, चेंज करने का मकसद क्या था? पहला, लॉ ऑफ लिमिटेशन मस्ट बी सिंपल। तो हमारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ रीजंस क्या थे? लिमिटेशन का लॉ सिंपल होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। पीरियड्स ऑफ लिमिटेशन ना बहुत लंबे होने चाहिए, ना बहुत छोटे होने चाहिए। और बहुत सारे अभी तक जुडिशियल डिसीजंस आ चुके थे, उनको भी इनकॉर्पोरेट करके नाउ वी हैड टू मेड अ प्रॉपर लिमिटेशन लॉ। जो पुराने लॉज थे, जैसे 1908 का लॉ था, उसके बारे में जो 3 बेसिक प्रॉब्लम्स थी, उनको एड्रेस किया गया। ये 3 बेसिक प्रॉब्लम्स क्या थी? आर्टिकल्स वर नॉट अरेंज्ड एज पर देयर सब्जेक्ट मैटर। ब्रीच आ गया, मैरिज आ गया, तो मतलब कुछ भी कहीं भी। सो पहला दिक्कत क्या थी, दैट आर्टिकल तो जरूर, तो इसमें क्या इनका, व्हाट वाज द एंडेवर इन दिस लॉ? टू अरेंज आर्टिकल्स, रीअरेंज आर्टिकल्स एज पर द सब्जेक्ट मैटर। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो तो सारे कॉन्ट्रैक्ट की एक जगह होने चाहिए, कोई मैरिज का मामला है तो सारे इसमें होने चाहिए, सूट है तो सूट एक जगह होने चाहिए। तो रीअरेंज करके, ताकि ऑल आर्टिकल्स शुड बी एज पर देयर सब्जेक्ट मैटर, पहला। दूसरा, जितना हो सकता है हमारा फिक्स पीरियड होना चाहिए लिमिटेशन का। वी शुड हैव एज फार एज पॉसिबल अ क्लियर फिक्स पीरियड ऑफ लिमिटेशन, बिकॉज उसमें क्या था, दिस मच और दिस मच, तो वो कंफ्यूज करता था। एंड लास्टली, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लिमिटेशन होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, वहां से लिमिटेशन शुरू होना चाहिए। ये 3 बेसिक चीजें थी जो 1963 के एक्ट में फॉलो की और कवर की। ये जो 1963 का एक्ट है, इट रिसीव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट on 5th October 1963 and it came into force on 1st January 1964. तो 1 जनवरी 1964 से। कई बार ऐसे वाहियात क्वेश्चन भी आ जाते हैं प्रीलिम्स में, वो डिपेंड करता है कैसा एग्जामिनर है। तो we must always read the date of implementation of any law. अब ये जो लिमिटेशन का जो नया हमारा ये लॉ है जो अब हम पढ़ रहे हैं 1963 का, ये सिर्फ 3 सब्जेक्ट मैटर को डील करता है। सो दिस एंटायर लिमिटेशन लॉ ओनली डील्स विथ 3 सब्जेक्ट मैटर्स। पहला, सूट्स, ऑल सूट्स। दूसरा, ऑल प्रोसीडिंग्स। तीसरा, ऑल, नॉट ऑल, सम एप्लीकेशंस। ऑल सूट्स, ऑल प्रोसीडिंग्स, बट सम एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशन तो 10,000 तरह की हो सकती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या लिमिटेशन एक्ट सिर्फ सिविल लॉ के लिए आया? क्योंकि मैंने बात की है सूट्स,
प्रोसीडिंग्स भी उसी से मिलती जुलती। और ये क्वेश्चन आपका प्लीज मेंबर प्रीलिम्स का भी है, मेंस का भी है, इंटरव्यू का भी है। फर्स्ट क्वेश्चन ही उठता है, क्या लिमिटेशन एक्ट 1963 सिविल मामलों के लिए कि क्रिमिनल मामलों के लिए? अगर हम बॉडी ऑफ द एक्ट देखें, सूट सूट सब जो लैंग्वेज है वो सिविल लॉ की है। बट अगर हम आर्टिकल्स देखें, आर्टिकल 114, 114, आर्टिकल 115, सीआरपीसी की अपील्स वहां है। अपील कितने दिनों में आप करोगे? सपोज मर्डर है, सपोज कोई कोई नीचे का जजमेंट है, वो सीआरपीसी में नहीं लिखा है, वो यहां लिखा है। ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यू में पूछा है। आप कहते हो 90 दिन है, अपील कहां से पढ़ा आपने? कौन सा सेक्शन है सीआरपीसी का या बीएनएसएस का, कौन सा सेक्शन है? सर आई एम सॉरी, आई कांट रिकलेक्ट। आंसर ही गलत है, क्योंकि सीआरपीसी में लिखा ही नहीं है, कहीं नहीं अपील पीरियड में लिखा कि 90 दिन में होगी, वो यहां लिखा है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो 114, 115 अपील्स, क्रिमिनल अपील्स। आर्टिकल 131 फॉर रिवीजन। सो क्रिमिनल रिवीजन अगर आपने करनी है तो आप 131 लिमिटेशन एक्ट में जाओगे, आर्टिकल यानी कि शेड्यूल 1, या आर्टिकल शेड्यूल 1 में दिए गए। और बाय चांस आपने स्पेशल लीव पिटीशन में जाना है, आर्टिकल 133। इज एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन। आज जो भी मैं बातें कर रहा हूं ये एग्जाम में कहीं ना कहीं आएगा, देखोगे आप। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ रहा है, आप सर सूट्स की बात करते जा रहे हो, चलो आपने कुछ आर्टिकल, 4-5 आर्टिकल पढ़ दिए कि ये अपील का हो गया, ये रिवीजन का हो गया, ये एसएलपी का हो गया। सर व्हाट अबाउट ऑर्डिनरी केसेस ऑफ ऑफेंसेस? सो याद रखना, ऑर्डिनरी ऑफेंसेस का लिमिटेशन लॉ, लिमिटेशन एक्ट में नहीं दिया गया, बट सीआरपीसी में दिया गया। तो अगर हम सीआरपीसी में जाते हैं तो 467 to 473 CRPC, which now corresponds to section 513 to 519 BNSS. तो अब लिमिटेशन का लॉ ऑर्डिनरी ऑफेंसेस के लिए सीआरपीसी है या बीएनएसएस है। सो 513 टू 519 बीएनएसएस, या अगर मैं सीआरपीसी में जाऊं तो पुरानी 467 से 473। हाँ, वो अभी हर जगह चेंज नहीं हुआ, वो 1970 भी चेंज नहीं की, इंडिया है, चलता है। चलो, अब अब क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट अबाउट ऑफेंसेस? ऑफेंसेस का लिमिटेशन एक्ट नहीं है क्या, कोई पीरियड नहीं है? अब याद रखना, इसका जवाब लिमिटेशन एक्ट में नहीं है, इसका जवाब जैसे कि मैंने बोला सीआरपीसी में या बीएनएसएस में। बीएनएसएस में जो हम 513 से 519 पढ़ेंगे, सिर्फ 3 साल तक पनिशेबल ऑफेंसेस का लिमिटेशन पीरियड है, बस। अगर ऑफेंस की सजा 3 साल से ज्यादा है, कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। तभी हमने देखा ना, एक गॉडमैन के खिलाफ रेप का केस 2002 का, उसका कन्विक्शन हो गया। सो दिस इज द रीजन व्हाई। सो वन थिंग वी मस्ट रिमेंबर, क्रिमिनल लॉ में 3 साल से ज्यादा लिमिटेशन पीरियड नहीं है, और वो लिमिटेशन पीरियड भी लिमिटेशन एक्ट नहीं देता, बीएनएसएस देता है। उसका लिमिटेशन पीरियड अगर 1 साल का ऑफेंस है, उससे पनिशेबल है तो 1 साल का लिमिटेशन पीरियड है, 2 साल का है तो 2 साल का है, और 3 साल का है तो 3 साल का है। क्वेश्चन ही उठता है, ऐसा ऐसा स्टेप मदरली ट्रीटमेंट क्यों? ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने। चलिए देखते हैं इसका वाई, द वाई ऑफ दिस वाज गिवन टू अस बाय द सुप्रीम कोर्ट। चलिए उस जजमेंट को देखते हैं। जापानी साहो, JAPANI, जापानी साहो, SAHO, जापानी साहो वर्सेस चंद्रशेखर मोहंती
चंद्रशेखर मोहंती, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा द रीजन व्हाई लिमिटेशन एक्ट 1963 डज नॉट प्रोवाइड फॉर लिमिटेशन फॉर क्रिमिनल केसेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इज that it is a well settled jurisprudence that a criminal offense is considered as a wrong against the state and not against the victim alone. Even though it has been committed against an individual, the general rule of criminal justice is that a crime never dies. एक क्राइम कभी मरता नहीं है. And this principle is reflected in the well-known maxim, nullum. कई बार ये मैक्सिम्स भी आ रहे हैं, ध्यान रखना. कहाँ गया ये? चलो, आहा, पेन. ओके, nullum tempus aut locus occurret. Nullum tempus aut locus occurrit regi, which means lapse of time is no bar to the crown in proceedings against offenders. यानी कि टाइम का कोई बार नहीं है पनिशमेंट के लिए ऑफेंसेस में. सो क्रिमिनल लॉ के अंदर लिमिटेशन का पीरियड वो तो लिमिटेशन एक्ट ने लगा दिया. अगर लिमिटेशन एक्ट ना डालता तो कोई लिमिटेशन पीरियड था ही नहीं. सो याद रखना. आई होप एवरीबॉडी इज नाउ क्लियर. एज अ जनरल रूल ऑफेंसेस का लिमिटेशन पीरियड नहीं है. हाउएवर छोटे केसेस में कोई 10 साल बाद आ जाए, इसीलिए लिमिटेशन एक्ट सॉरी सीआरपीसी ने लिमिटेशन का पीरियड डाल दिया. बीएनएसएस में भी है. और उसके अंदर जो लिमिटेशन पीरियड मैक्सिमम है वो है 3 साल का, जहां तक आपका 3 साल से पनिशेबल ऑफेंसेस हैं. यानी कि 3 साल से ज्यादा पनिशेबल ऑफेंसेस का कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है. आदमी कभी भी आ सकता है, 20 साल के बाद भी आ सकता है. हाँ, पर जहां तक अपील का सवाल है और रिवीजन का सवाल है, वो उनका लिमिटेशन पीरियड सीआरपीसी में नहीं दिया गया, बट वो लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल 1 के आर्टिकल्स जो मैंने आपको बताया 114, 115 और 131, इनके अंदर हमारे ये सारे राइट्स थे. सॉरी, नहीं, वो क्या होता है? अच्छा, चलिए आगे चलते हैं. अभी माय लर्नड फ्रेंड यूज्ड अ वेरी वेरी डेंजरस वर्ड, लैचेस. मैं बहुत सारा सीखता हूं आप सबसे लॉ. क्वेश्चन ही उठता है ये क्या भला है जो इन्होंने वर्ड सडनली यूज कर लिया. माय लर्नड फ्रेंड यूज्ड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, लैचेस. लैचेस एक, जब कहेंगे कि जो कहते हैं ना जैसे गंगा जहां से निकलती है, गोमुख, वो इस पूरे लॉ का गौमुख है. लैचेस का बेसिकली मतलब होता है डिले. तो बेसिकली कोई भी डिले हो वो लैचेस में आते हैं. सो क्वेश्चन ये उठता है कि लैचेस कहां अप्लाई होता है. जहां लॉ लिखा नहीं है वहां लैचेस होता है. तो अगर कोई लिमिटेशन का पीरियड नहीं दिया, इसका मतलब लिमिटेशन पीरियड नहीं है. अब तो मेरी मर्जी है, मैं जब मर्जी हूँ 40 साल, मैं मर गया, मेरा मेरा पोता मर गया, मेरा पर पोता आ गया कि ओ मेरे ग्रेट ग्रैंड डैड का जी सिविल राइट इन्फ्रिंज हुआ था, मैं आ गया. अब दिस इज अगेंस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस. इसलिए याद रखना, अगर लिमिटेशन का हमारे पास पीरियड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल रिट्स का कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है, या कोई ऐसा राइट है, फॉर एग्जाम्पल मैरिज,
आप आपने उनको, आप डाइवोर्स के ले गए, उन्होंने कहा अरे पहले क्यों नहीं आए, कब से हुआ है क्रूअल्टी? सर पहले दिन से। तो 20 साल से तुम टॉलरेट कर रही थी, नहीं मिलेगा। ऐसा कर सकती है क्या कोर्ट? नहीं कर सकती। तो क्या मैरिटल वाले रिलीफ्स में हम लॉ ऑफ लिमिटेशन लगा सकते हैं? तुमने मेंटेनेंस टाइम पे क्यों नहीं मांगा, तुमने बच्चों की कस्टडी टाइम पे क्यों नहीं मांगी, अब नहीं मिलेगी। ऐसे सब जगह जहां लिमिटेशन का लॉ नहीं लगा सकते, क्यों? पब्लिक पॉलिसी नहीं है, वहां पे लॉ ऑफ लैचेस लगता है। लॉ ऑफ लैचेस जो है, प्लीज रिमेंबर, लिमिटेशन इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ, laches is a creation of a jurisprudence principle of justice, equity, good conscience. सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लिमिटेशन? ये मेंस का क्वेश्चन है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लिमिटेशन इज टू एंश्योर that rights are given relief in the right time. दिस इज वन मेंस का क्वेश्चन जो बहुत बार आया है। चलिए उसी को पहले कवर करते हैं। मैं इसमें जल्दी जल्दी डिक्टेट करा देता हूं, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, यहीं से शुरू कीजिएगा। फर्स्ट मैं प्रिवी काउंसिल से शुरू करता हूं। लक्ष्मी वर्सेस रंजीत, लक्ष्मी वर्सेस रंजीत। I'm sorry, I don't have that here, but it is Privy Council. The object of Limitation Act is to quiet long possession and to extinguish stale demands. The main object is to quiet long possession, long possession को चुप कराना, और extinguish stale demands, और जो stale हो गई हैं demands उनको extinguish करना। Next, the laws of limitation and prescription. The laws of limitation and prescription are based on the principle that law aids the diligent and not the indolent. So the laws of limitation and prescription are based on the principle that law aids the diligent and not the indolent. जो एक्टिव, जो काम डिलीजेंट है, उसको फेवर करता है, सोते हुए आदमी की मदद नहीं करता। A person who has negligently slept over his rights, a person who has negligently slept over his rights for an undue length of time will not be allowed to litigate in respect of them. For undue length of time will not be allowed to litigate in respect of them. मैकॉले ने एक डिबेट थी, मैकॉले, देयर वाज अ डिबेट इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, कोई चैपल बिल था, उसमें डिबेट हो रही थी। उसने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट हैविंग अ लॉ ऑफ लिमिटेशन डिस्कस किए, कि अगर लॉ का लिमिटेशन ना होता तो क्या होता। तो देयर ही सेज that suppose my grandfather had accepted any bill of exchange which became a case for a suit, and my grandfather did not do anything, my father also did not do anything, I also decide that I'm too busy to do anything, my son can't be allowed to rake up this matter after 60 years, 60 साल के बाद वही वाला। तो बेसिकली क्यों? बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि क्यों लॉ ऑफ लिमिटेशन, व्हाई। सो उसके पॉइंट्स लिखते हैं व्हाई नाउ। I would like to quote Chiranjit Lal versus Haridas, 2005 Supreme Court. Chiranjit Lal versus Haridas, 2005 Supreme Court.
देयर आर टू लैटिन प्रिंसिपल्स जिसके ऊपर ये लिमिटेशन लॉ बेस्ड है. देयर आर टू लैटिन प्रिंसिपल्स. पहला, सचिन करेक्ट. सी, दो हमारे लैटिन प्रिंसिपल है. कई बार क्या होता है, आई हैव सीन क्वेश्चन, ये लैटिन प्रिंसिपल एक दे देते हैं, दिस इज द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ लिमिटेशन, एलुसिडेट. सो दे कैन डू आइदर ऑफ दिस. सो एक बार मैंने, ये तो पहले वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस था. प्लीज बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस. सो पहला क्या है हमारा, इंटरेस्ट रिपब्लिके फिनिस लिथियम. इंटरेस्ट, ये बहुत बार ये पूछा गया है. ये सबको पता भी होगा, नहीं भी आता तो आप इसको मत भूलिएगा. इंटरेस्ट रिपब्लिके फिनिस लिथियम. It is always in the interest of the state that there must be an end to litigation. It is always in the interest of the state that there must be an end to litigation. ये स्टेट के फायदे में है कि सारा लिटिगेशन जल्दी से जल्दी खत्म हो. दूसरा, विजिलेंटिबस. विजिलेंटिबस नॉन डर्मिटिस. नॉन डोरमेंटिबस जूरा सबविनिएंट. The Supreme Court laid down two basic principles which govern law of limitation. पहला, it is in the interest of the state that there must be an end to litigation, इसलिए हम लिमिटेशन का लॉ ले आए हैं. दूसरा, law aids the diligent and not those who are indolent. So law diligent लोगों की मदद करता है, सोते हुए लोगों की मदद नहीं करता. जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है लिमिटेशन क्यों हम बाद में अलाउ नहीं करते, सी, इस चीज को हम हेल्सबरी लॉज में पढ़ते हैं. व्हेन आई गो टू हेल्सबरी लॉज ऑफ इंग्लैंड, इस चीज को बहुत डिटेल में बताया गया. लेट्स सी दोस लॉज जिसमें लिमिट इनका रीजन बताया गया कि तीन बेसिक रीजन है, तीन ऑब्जेक्ट्स हैं लिमिटेशन एक्ट के. पहला, कि जो पुराने क्लेम होते हैं उनमें क्रूअल्टी ज्यादा होती है, जस्टिस कम होता है. 40 साल पुराना अगर आप क्लेम ले आए तो ये क्रूअल्टी ज्यादा है कि 40 साल पुरानी चीज ले आए. तो हमेशा याद रखना, लिमिटेशन लॉ इज बेस्ड ऑन व्हाट वी कॉल द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस. सो लिमिटेशन का लॉ हमेशा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस पे होता है. तो आप 40 साल नहीं आए और 40 साल के बाद सडनली उठ के आ गए कि जी मेरा राइट था, तो ये ज्यादा प्रॉब्लम डालेगा रादर कि आपको जस्टिस देगा. तो आपके लिए तो जस्टिस हो गया, पर उस आदमी के लिए क्या, जो बेचारा 40 साल के बाद, हो सकता है वो बंदा भी मर गया, उसका लड़का या उसका ग्रैंडसन उसको डील कर रहा है. सो दैट इज व्हाई हेल्सबरी लॉज में ये चीज क्लियर की गई कि ऑलवेज द लॉन्ग डोरमेंट क्लेम्स हैव मोर क्रुअल्टी देन जस्टिस इन देम. तो जो पुराने लॉ, जो डोरमेंट क्लेम्स होते हैं उनमें जस्टिस कम होता है और क्रुअल्टी ज्यादा होती है. पहला, so long dormant claims have more cruelty rather justice in them. Secondly, इतना टाइम हो गया तो डिफेंडेंट मे हैव लॉस्ट द एविडेंस. 40 साल तक कौन एविडेंस लेके बैठेगा, सो अब तो हारेगा ही क्योंकि उसके पास एविडेंस नहीं है. सो द डिफेंडेंट माइट हैव लॉस्ट द एविडेंस इन डिस्प्यूट. And thirdly, persons with good causes of action
are expected to pursue them with reasonable diligence. जिनका अच्छा कोई कॉज ऑफ एक्शन है, हम मान के चलेंगे वो जल्दी से जल्दी कोर्ट में जाएंगे. So persons with good causes of action should pursue them with reasonable diligence. इन तीन व्यू पॉइंट्स में अगर आप नोट करो, तीन अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं तीनों में. पहला कि ये क्रूअल्टी ज्यादा है और जस्टिस कम है, ये डिफेंडेंट के व्यू पॉइंट से लिखा गया. दूसरा जो है कि एविडेंस नहीं मिलेगा, तो जहां एविडेंस नहीं मिलेगा ये ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट से, क्योंकि जहां पे आपका एविडेंस नहीं है वहां पे नेचुरली जजमेंट गलत होगी. तो बेसिकली इट इज अगेंस्ट फेयर ट्रायल. और तीसरा जो है वो प्लेंटिफ के व्यू पॉइंट से लिखा गया है कि प्लेंटिफ की जिम्मेवारी है कि अगर अच्छा कॉज ऑफ एक्शन है तो जल्दी से जल्दी कोर्ट में जाए. I would like to quote Rajwinder Singh versus Santa Singh, 1973 Supreme Court. The basic object of law of limitation is justice, equity and good conscience. बेसिक जो है वो जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्शियंस है. मोतीचंद वर्सेस मुंशी, 1970 सुप्रीम कोर्ट. मोतीचंद वर्सेस मुंशी, 1970 सुप्रीम कोर्ट. Law of limitation ensures that fraud, perjury is suppressed. जितनी जल्दी होगा फ्रॉड कम होंगे, झूठी गवाहियां कम होंगी. सो बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि क्लीन ट्रायल हो, फेयर ट्रायल हो, फ्रॉड ना हो, झूठी गवाहियां ना हो, ये लॉ ऑफ लिमिटेशन इंश्योर करता है. क्वेश्चन एक और उठा सुप्रीम कोर्ट के सामने, बालाकृष्णन वर्सेस कृष्णामूर्ति. बालाकृष्णन वर्सेस कृष्णामूर्ति, ये मामला उठा 1998 सुप्रीम कोर्ट में. क्या लिमिटेशन आपके राइट्स डिस्ट्रॉय करता है? जब आप मुझे जाने नहीं दे रहे मेरे टाइम के बाद, तो क्या मैं मान के चलूं आप मेरे राइट्स खा गए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इट इज नॉट मेंट टू डिस्ट्रॉय योर राइट्स, इट इज मेयरली मेंट टू सी दैट पार्टीज डू नॉट रिजॉर्ट टू डायलेटरी टैक्टिक्स. जान के लेट कराएं ताकि गलत कोई हम ऑर्डर ले लें कोर्ट से. और यहां पे फिर बोला गया कि बेसिकली बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इसका बेस है. तो ये नहीं है कि आप अगर आपके राइट है तो डिफेंडेंट के भी तो राइट्स हैं, इसीलिए हमें बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखना है. सो इट इज अ बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस व्हिच वी हैव टू वॉच व्हाइल डिसाइडिंग एनी मैटर ऑफ लिमिटेशन. ओके, इज एवरीबॉडी क्लियर ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स? फाइन. नाउ एक क्वेश्चन जो बहुत बार आया हुआ एग्जाम में, statutes of limitation are known as statutes of repose, peace and justice. ये एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन आया. Statutes of limitation are known to be statutes of repose, peace and justice. ये जो कोटेशन है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है. ये लिया हुआ है वुड से. देयर इज अ जूरिस्ट कॉल्ड वुड. सो वुड का कोटेशन है ये, इसको यूज किया गया है. नाउ इसके ये जो 3 वर्ड्स हैं, इसका मतलब क्या है? बेसिकली जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं वही है. बट रिपोज क्यों? रिपोज बिकॉज इट एक्सटिंग्विशेस स्टेल डिमांड्स. तो रिपोज क्यों? हाउ डज इट इंश्योर रिपोज? बिकॉज इट एक्सटिंग्विशेस स्टेल डिमांड्स. , , , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 ,
दूसरा पीस, बिकॉज इट एंश्योर्स सिक्योरिटी ऑफ राइट्स। एक बार जल्दी चले गए हम कोर्ट में तो राइट्स मेरे सिक्योर है। एंड जस्टिस, बिकॉज विद द लैप्स ऑफ टाइम एविडेंस may be lost. That is why it is said that statutes of limitation are statutes of repose, peace and justice. तो जो हमने हेल्सबरी लॉज पढ़े थे वो भी आप इसके साथ कोट करोगे, और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं वो भी इसके साथ कोट करोगे, तब आपका कंप्लीट आंसर होगा ये। सो वन थिंग वी मस्ट रिमेंबर, एक एक जो जूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वो बेस है लिमिटेशन का। तो लॉ ऑफ लिमिटेशन से फायदा क्या क्या हुआ? फर्स्टली रिड्यूसेस पेंडेंसी, सेकंड प्रिवेंट्स डिले ऑफ केसेस, तीसरा एंश्योर्स फेयर ट्रायल, क्योंकि सारे एविडेंसेस अभी हैं, इज एवरीबॉडी क्लियर टिल नाउ? ऑल पॉइंट्स क्लियर? किसी को कोई शक किसी चीज पे? ओके, नाउ एक चीज याद रखना प्लीज, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आया हुआ है। लिमिटेशन एक्ट ना तो डिफाइन करता है कोई कॉज ऑफ एक्शन, ना ही क्रिएट करता है। सो लिमिटेशन एक्ट नाइदर डिफाइंस नॉर क्रिएट्स एनी कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन तो आपका है ही, कोई सिविल राइट है जो उससे बनता है। So basically, Limitation Act neither creates nor defines any cause of action. It simply prescribes the period within which existing rights can be enforced in a court of law. I now come to the topic of latches. Latches का बेसिक मतलब होता है स्लैकनेस, स्लॉथ। हिंदी में क्या कहते हैं? स्लॉथ इज वेरी बड़ा ये, आप समझ गए। सो स्लैकनेस, स्लॉथ, स्लॉथ आदमी पड़ा है, ठीक है, कुछ नहीं होता। बेसिकली हम नेग्लिजेंस वर्ड तो यूज नहीं करेंगे, पर नेग्लिजेंस उसका एक एलिमेंट होता है। सो बेसिकली लैचेस का मतलब एक होता है लेजीनेस इन परसुइंग अ रेमेडी। उसका एक ऑटोमेटिकली एक जो एलिमेंट बन जाता है वो है नेग्लिजेंस। सो एक ऑटोमेटिक एलिमेंट ऑफ लैचेस इज नेग्लिजेंस। आई विल से देयर इज अनड्यू डिले बिकॉज ऑफ अ मेंटल एटीट्यूड। सो लैचेस के अंदर प्लीज रिमेंबर एक मेंटल एलिमेंट होता है कि ठीक है यार, हो जाएगा, चल रहा है ना, क्या दिक्कत है। सो देयर इज अ मेंटल एलिमेंट ऑलवेज इन्वॉल्वड इन लैचेस। अ डैम केयर एटीट्यूड। तो जब वो एटीट्यूड होता है कि ठीक है, देख लेंगे, क्या आग लग रही है, वो लैचेस का बेस हो। सो प्लीज रिमेंबर, लैचेस के अंदर एक बेसिक मेंटल एलिमेंट होता है हमेशा, लेजीनेस का, और उससे जुड़ा हुआ नेग्लिजेंस का। इसीलिए जूरिस्प्रूडेंस ने एक प्रिंसिपल बनाया था, डिले डिफीट्स इक्विटी। इसलिए जूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल बन गया डिले डिफीट्स इक्विटी। अब हमने देखा कि प्रिस्क्रिप्शन में हमारा टाइम फिक्स था, 20 साल था, पुराने में भी, अभी भी है। लिमिटेशन में है ही टाइम फिक्स। लैचेस में देयर इज नो टाइम पीरियड विच इज फिक्स्ड। सो दैट मींस ओनली दोज मैटर्स विल बी कवर्ड जिसके अंदर कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। ये फिक्स टाइम या तो प्रिस्क्रिप्शन में जाएगा और या फिर लिमिटेशन में जाएगा। So we can say that, as I said in the beginning,
that latches is the basic fountainhead of the mindset. माइंडसेट का वो, जैसे मैंने बोला था, गौमुख है। उस गौमुख में से दो तरह की धारा, यमुना और गंगा, निकलती हैं। एक प्रिस्क्रिप्शन है और एक लिमिटेशन है। इज एवरीबॉडी नाउ क्लियर? तो इनका रिश्ता क्या है आपस में? सो लैचेस जो है वो एक बेसिक डिले बिकॉज ऑफ एन एटीट्यूड। वो एटीट्यूड को अगर हम टाइम पीरियड फिक्स कर देते हैं तो जहां राइट भी चले गए वो प्रिस्क्रिप्शन बन जाता है, जहां रेमेडी चली गई पर राइट नहीं गए वो लिमिटेशन बन जाता है। तो दो धाराएं निकलती हैं फ्रॉम द लैचेस। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर नाउ। नेचुरली जब भी हम लैचेस का केस, अब सपोज, तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस के लैचेस में कौन से मामले जाएंगे? कॉमन सेंस की बात है कि जो चीजें लिखी नहीं हुई, जिनका कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया, तो टाइम पीरियड क्यों नहीं दिया गया? हम भूल गए? लेजिस्लेचर भूल गया क्या? नहीं, भूल नहीं गया। पब्लिक पॉलिसी अलाउ नहीं करती कि इसका कोई टाइम पीरियड रखा जाए। सो वेयर पब्लिक पॉलिसी हैज नॉट अलाउड दैट एनी टाइम पीरियड शुड बी फिक्स्ड, ऐसे मामलों में वी हैव नेचुरली द लॉ ऑफ लैचेस। तो ऐसे कौन से मामले हो सकते हैं? बहुत सारे मामले हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको। वी हैव फर्स्टली रिलीफ्स ऑफ अ रिट्स। रिट का कोई टाइम पीरियड नहीं रख सकते हम। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के रिलीफ्स, कोई टाइम पीरियड नहीं है उनका। रिलीफ्स इन मैट्रिमोनियल सूट्स, इंटरलॉक्यूटरी रिलीफ्स, इनको हम इंटरिम रिलीफ्स कहते हैं। इन ऑल दीज केसेस no limitation period has been fixed. Why? Because of public policy. क्योंकि इसमें टाइम पीरियड फिक्स करना डेट्रीमेंटल हो जाएगा किसी के फायदे के लिए। सो दिस इज वाई अब इन केसेस में क्या करेंगे? नाउ द कोर्ट विल कीप इन माइंड whether there has been any unnecessary delay or what I will call an unequitable delay. सो अब जब भी लैचेस का मामला डिसाइड करना है तो कोर्ट अपने माइंड में क्या रखेगा? क्या अननेसेसरी डिले है या, एज आई सेड, अनइक्विटेबल डिले है? अनइक्विटेबल क्या होगा? विच हैज रिजल्टेड इन अनपैरेलल्ड लॉस टू द अदर पार्टी, विच हैज रिजल्टेड इन डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। सो जहां पे अनइमेजिनेबल लॉस है डिफेंडेंट को और यहाँ एविडेंसेस खत्म हो गए हैं, वो फिर हम अनइक्विटेबल डिले में ला सकते हैं। So naturally question arises कि फर्क क्या है? If I was to say what is the difference between limitation and latches, ये क्वेश्चन भी आपका मेंस का क्वेश्चन है। तो पहला, लिमिटेशन में लेजिस्लेचर हैज फिक्स्ड द पीरियड, लैचेस में देयर इज नो टाइम पीरियड फिक्स्ड। पहला ही क्वेश्चन, पहला ही डिफरेंस आ गया। दूसरा, दोनों का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है। लैचेस इज बेस्ड ऑन जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस, लिमिटेशन डिपेंड्स ऑन एक्सप्रेस लॉ। तो लैचेस जो हैं वो जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्शियस पे डिपेंड करते हैं और लिमिटेशन जो है वो लॉ जो कहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। थर्डली, लिमिटेशन के अंदर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है। अगर एक दिन भी ऊपर हो गया तो कोर्ट के दरवाजे बंद है। बट लैचेस के अंदर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं होती। उसके अंदर ये देखना पड़ेगा कि आपकी कितनी गलती है। सो बेसिकली ये तीन फर्क है। सो लैचेस के अंदर कोर्ट क्या देखता है कि क्या प्लेंटिफ अवेयर था अपने राइट्स का, क्या नोइंगली अवॉइड कर रहा था, क्या डेलिबरेटली अवॉइड कर रहा था, क्या नेग्लिजेंटली अवॉइड कर रहा था, क्या ये अवॉइड करे बिना हो सकता था। ये सारे एंगल्स देखेगा व्हाइल गिविंग। सो प्लीज रिमेंबर, दोनों के डॉक्ट्रिन ही डिफरेंट है। द डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेशन इज बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी। लिमिटेशन के लॉ किसके ऊपर बना है? पब्लिक पॉलिसी, लोगों के ऊपर। एंड लैचेस का लॉ किसके ऊपर बेस्ड है? ऑन इक्विटी, ऑन जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्शियंस। ये जो मैंने अभी सारा आपको डिफरेंसेस वगैरह बताए हैं, ये दो जजमेंट्स में से मैंने लिया है। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है विपा थोमा
BEEPATHUMA, BEEPATHUMA versus S Narayane NARAINE 1965 सुप्रीम कोर्ट. और दूसरा कृष्णाप्पा वर्सेस सोमाया SOMIAH 1964 सुप्रीम कोर्ट. I hope everybody is clear on today's lecture. 1964 Supreme Court. Fine, we'll take it up from here in my next lecture. Thank you everybody. I hope सबने नोट कर लिया होगा. हाँ, शालू अनिल खन्ना को लिख दो बस. आकाश था, you have to write yourself. मेरे कोई नोट्स नहीं होते. Okay, thank you everybody.